मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तिरमिज़ी 1572। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से फीस रिएम्बर्समेंट की अदम इजराई, प्राइवेट डिग्री व पीजी कॉलेजेस का गैर मुय्यना मुद्दत बंद का ऐलान, तीसरे रोज भी बंद जारी, तलबा परेशान। भारतीय रानी कॉलोनी इनेदामी कार्रवाई के मुतासरीन गुज़िश्ता 2 माह से जिला इंतजामिया की इमदाद के मुंतजर, जल्द मकानात फराहम किए जाए, एमआईएम का मुतालबा। जिला कलेक्टर से मुलाकात, तहरीरी नुमाइंदगी की हवाले। जिला भर में आवारा कुत्तों की कसरत, इंसानी जानों को खतरा लाहक, अवाम का जीना दोपहर। आरमूर में भी कुत्तों की कसरत, अवाम परेशान, इक़दामात की अशद जरूरत। अब खबरें तफसील से। फीस रिएम्बर्समेंट मामले पर हंगामा जारी, खान की डिग्री वो पीजी कॉलेजेस का गैर मुय्यना मुद्दत कॉलेजेस का बंद का ऐलान, बंद तीसरे रोज भी जारी। मुत्तहिदा जिले में फीस रिएम्बर्समेंट की करोड़ों की रकम ज़ेरे इल्तिमा, तलबा परेशान। प्राइवेट डिग्री और पीजी कॉलेजों के मालिकान और मुलाजमीन ने चारशंबे को तीसरे रोज भी शहर के धरना चौक पर माना वहरम का मुजाहरा किया, जिसके तहत निजामाबाद जिला में प्राइवेट डिग्री और पीजी कॉलेजों के मालिकान ने फीस रिएम्बर्समेंट के खिलाफ एहतजाज किया। प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर एन सुधाकर ने कहा कि हर कॉलेज के तमाम मुलाजमीन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। धरना चौक पर हाजरीन से लेकर असातिज़ा और प्रिंसिपल तक अवाम का हुजूम था। तकरीबन 300 अफराद ने हिस्सा लिया और धरना चौक पर ट्रैफिक ठप हो गई। कॉलेजेस के मुशीर अरुण कुमार ने इस मौके पर कहा कि हर कॉलेज में तकरीबन 30 मुलाजमीन हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद माह से तनख्वाहें ना मिलने की वजह से उन्हें भी मुश्किलात का सामना है और रज़ाकाराना तौर पर एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, असातिज़ा और मुआविन अमले ने बड़ी तादाद में शिरकत की। మేము కేవలం ఆ కళాశాలలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులతోనే మానవహారం నిర్మించాం। మీరు చూడండి, ఇంత పెద్ద చౌరస్తాలో ఇన్ని వందల మంది ఈరోజు వచ్చారంటే సమస్య ఎంత తీవ్రంగా ప్రభుత్వం తెలుసుకోవాలి। మేము ఎవరిని బలవంత పెట్టలేదు, ఏం లేదు, కానీ గ్రూప్లో మెసేజ్ పెడితేనే టీచింగ్, నా టీచింగ్, స్వీపర్ నుండి ప్రిన్సిపల్ దాకా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చి ఈరోజు రోడ్డు మీద ఉన్నారు। మా బతుకులు రోడ్ల మీద పడ్డాయి। మేము నా టీచింగ్ స్టాఫ్కు దాదాపు 5-6 నెలల నుండి 7 నెలల నుండి జీతాలు ఇవ్వట్లేదు, టీచింగ్ స్టాఫ్కు 3 నెలల సంది ఇవ్వట్లేదు, కిరాయిలు కట్టట్లేదు, కరెంట్ బిల్లు కట్టట్లేదు, ఇంటర్నెట్ బిల్లు కట్టట్లేదు, చిన్న చిన్న ఖర్చులు కూడా మా దగ్గర తీయలేకపోతున్నాం। ఆ రోజు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కాలం నుండి ఒక సంవత్సరం స్కాలర్షిప్ అయినా మేము అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం। ఆ తర్వాత అదే విధాన్ని కేసీఆర్ గారు కొనసాగించారు। వీరు రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చినప్పుడు ఒక సంవత్సరం, ఈ సంవత్సరం పెండింగ్ పెట్టండి, పోయిన సంవత్సరం ఇవ్వండి, మేము అదే అడుగుతున్నాం। అయినా అని ఇప్పుడు ఒకవేళ ప్రభుత్వము అప్పుల్లో ఉంది, చాలా కష్టం ఉంది అనుకుంటే మేము ఒక 30% ఏదైతే టోకెన్లు రిలీజ్ చేశారో వాటిని రిలీజ్ చేయమంటున్నాం। ఆ తర్వాత మా వాళ్ళని పిలిచేసి మాట్లాడి మీరు 2 నెలల కింద ఇచ్చినా మేము అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా ఉంటున్నాం। మేము ప్రభుత్వాలతో మేము కొట్లాడేది లేదు, ప్రభుత్వాలతో ఎదురు పోయేది లేదు। మేము మా మనుగడ ప్రశ్నార్థకమైంది। ఈ రోజు మేము రోడ్డు మీద కాకపోతే 10 రోజుల తర్వాత మా బతుకులు రోడ్డు మీదకి వస్తాయనే బాధతోనే ఈ రోజు మేము రోడ్డు మీదకి వచ్చినాం। నిజంగా చెప్పాలంటే నా బ్రేస్లెట్, నా చైన్ ఇదంతా కూడా నేను అలహాబాద్ బ్యాంక్లో తాకట్టు పెట్టినా, మా భార్య నగల్ని ఆంధ్ర బ్యాంక్లో పెట్టినా, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ తీసేసిన। ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి అంటే స్నేహితులు, చుట్టాలు మేము ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు లేపలేని పరిస్థితి ఉంది। మన వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు మా భార్య పూజ చేసుకుంటే దేవుడి మీద ఒక నగ కూడా పెట్టుకోలేకపోయినాం। మా బాధలు మేము లోపట ఒత్తుకొని ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది। మేము ప్రభుత్వానికి విన్నవించేది టోకన్లు పెట్టిన అమౌంటే రిలీజ్ చేయండి, మిగతా అమౌంట్ కూడా టైం తీసుకున్నా సరే మేము ప్రభుత్వానికి
మేము కోఆపరేట్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీకు రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నిరుపేదలు చదివేది డిగ్రీ కాలేజీలోనే టోటల్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ మీద ఎటువంటి ఫీజు తీసుకోకుండా एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद एमआईएम कायदीन के वफद की जिला कलेक्टर से खुसूसी मुलाकात. भारतीय रानी कॉलोनी मुतासरीन को जल्द मुस्तकिल मकानात की फराहमी और शादी मुबारक के चेक्स की जल्द इजराई के लिए तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की. मुतासरीन को इमदाद व राहत में ताखिर के सबब मुतासरीन शदीद मुश्किलात और खुले आसमान तले जिंदगियां बसर करने पर मजबूर. जिला कलेक्टर को मुकम्मल वक्फियत जल्द डबल बेडरूम मकानात अलाट करने का जिला कलेक्टर ने तयक्कुन दिया. एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद एमआईएम कायदीन के एक वफद ने एमआईएम टाउन सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से उनके चैम्बर में खुसूसी मुलाकात की और एक तहरीरी नुमाइंदगी हवाले करते हुए भारतीय रानी कॉलोनी मुतासरीन को जल्द मकानात या अराजी की फराहमी के अलावा गुज़िश्ता 6 माह से तातुल का शिकार शादी मुबारक के चेकों को इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम करने पर जोर दिया और बताया कि 17 अगस्त को महकमा रेवेन्यू और महकमा बल्दिया की जानिब से भारतीय रानी कॉलोनी में बिना किसी नोटिस इन्हिदामी कार्रवाई करते हुए गरीब अवाम के मकानात को मुनहदिम किया गया था, जिसके बाद एमआईएम की जानिब से ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी पर ज़िला कलेक्टर ने जल्द अराजी की फराहमी और तामीरात के लिए फ़ंड्स देने का तयक्कुन दिया था. इसी तरह 22 अगस्त को आरडीओ से एमआईएम कायदीन ने मुतासरीन के हमरा मुलाकात करते हुए अराजी या मकानात की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर आरडीओ ने अंदरून 3 यौम हर मुमकिन इमदाद का तयक्कुन दिया था. 2 माह गुजर जाने के बावजूद किसी किस्म की इमदाद या राहत ना मिलने से मुतासरीन खुले आसमान तले दुश्वारियों में ज़िंदगियां बसर करने पर मजबूर है. फ़ौरन इमदाद के लिए इक़दामात करने पर जोर दिया. ज़िला कलेक्टर ने जल्द से जल्द डबल बेडरूम मकानात अलाट करने का तयक्कुन दिया और इस सिलसिले में इक़दामात का इजहार किया. इसी तरह महकमा रेवेन्यू की जानिब से शादी मुबारक चेकों की तकसीम में ताख़ीर पर इस्तिफादा कुनिंदगान को दिक्कतों का सामना है, जल्द चेकों की तकसीम की ख्वाहिश जाहिर की. इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान, ज़िला सदर एमआईएम मोहम्मद फयाज़ुद्दीन, टाउन मोतमद शहबाज अहमद, कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर, एजाज हुसैन, रफ़ीउद्दीन, मोहम्मद रियाज, कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा, सीनियर क़ायद मीर मजाज अली, खलील अहमद वो दीगर भी मौजूद थे. जिला निजामाबाद के अक़लियती तलबा व तालिबात की 2 साल से ज़ेरे इल्तिवा 15 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स की इजराई की डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमाकर्का से समीर अहमद जोनल सदर निजामाबाद कौमी तंजीम की कामयाब नुमाइंदगी. ज़िला निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती तलबा व तालिबात की गुज़िश्ता 2 साल 2022-23 और 2023-24 के दौरान स्कॉलरशिप्स के ज़ेरे इल्तिवा व अदम इजराई पर तलबा व तालिबात व वालिदैन की जानिब से मुसलसिल समीर अहमद जोनल सदर निजामाबाद ऑल इंडिया कौमी तंजीम व साबिक़ा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी कांग्रेस डिपार्टमेंट को बज़रिया फ़ोन व रास्त तौर पर रब्त पैदा करने पर तवज्जो मबसूल कराई जा रही थी. इस ज़िमन में ज़िला निजामाबाद के अक़लियती तलबा व तालिबात को पोस्ट मैट्रिक 15,000 करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी के लिए समीर अहमद जोनल सदर निजामाबाद कौमी तंजीम व साबिक़ा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी डिपार्टमेंट ने हैदराबाद पहुंचकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमाकर्का से सेक्रेटरीट में मुलाकात करते हुए एक तफसीली याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि वो ज़िला निजामाबाद के अक़लियती तलबा व तालिबात के लिए गुज़िश्ता 2 सालों से स्कॉलरशिप्स की रकम मंजूर ना किए जाने पर
तलबा व तालिबात में शदीद बेचैनी व तशवीश का इजहार किया जा रहा, जिस पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने समीर अहमद सदर निजामाबाद जोनल ऑल इंडिया कौमी तंजीम को कि वो इस सिलसिले में ज़िला निजामाबाद के तलबा व तालिबात की ज़ेरे इल्तिवा स्कॉलरशिप्स की 15,000 करोड़ रुपए की रकम जो गुज़िश्ता 2 सालों से जारी नहीं की गई थी, बहुत जल्द इस रकम की इजराई के लिए महकमा फाइनेंस के ओहदेदारों को अहकामात जारी किए जाएंगे। समीर अहमद ने इस खुसूस में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से इजहार तशक्कुर किया। क़ाबिल अज़ीज़ समीर अहमद ने भट्टी विक्रमार्का की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। माखलूर का केजीबीवी स्पेशल ऑफिसर केस मुतनाज़ा होते जा रहा। केजीबीवी स्पेशल ऑफिसर अनुराधा तौहीन आमेज अल्फाज में आला हुक्काम, असातिज़ा और अमले की तौहीन करके बाविकार तदरीसी पेशे को दागदार कर, जिस पर IFTU ने बरहमी का किया इजहार। माखलूर केजीबीवी स्पेशल ऑफिसर अनुराधा को ड्यूटी से हटाने की IFTU जिला जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर ने जिला कलेक्टर से शिकायत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने केजीबीवी अमला, असातिज़ा और आखिर में GECO और DEO पर स्कूल असेंबली के दौरान तलबा के सामने उनके साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि करप्शन पर सवाल उठाने वालों को हिरासा किया जाता है और ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जाता है और इल्ज़ाम लगाया कि मुलाजमीन के ज़ाती मामलात में घुसकर और आपस में नाजायज़ ताल्लुकात रखकर मुलाजमीन को हिरासा किया जा रहा। उन्होंने याद दिलाया कि जब पहले ही GCO और DEO के पास शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है तो उसकी जांच की गई है और स्पेशल ऑफिसर अनुराधा को वार्निंग दी गई है, ताहम इनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में IFTU लीडर ललिता, मुरली दीगर भी मौजूद थे। పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా ప్రధానంగా మాక్లూర్ కేజీబీవీ స్పెషల్ ఆఫీసర్ అనేక రకాలుగా టీచింగ్ సిబ్బందిని కావచ్చు, నాన్ టీచింగ్ వర్కర్లను కావచ్చు, పచ్చి బూతులు మాట్లాడుతూ ముఖ్యంగా జుగుప్సాకరమైన మాటలు రాయలేని పలకలేని విధంగా దుర్భాషలాడుతూ ఈరోజు మొత్తం మాక్లూర్ కేజీబీవీ సిబ్బందిని మొత్తం కూడా వేధిస్తూ ఉన్నది। అదేవిధంగా సమయపాలన పాటించే విషయంలో కావచ్చు, అదేవిధంగా మిగతా పాఠశాలకు సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్లో కావచ్చు, మొత్తంగా కూడా దీని మీద శ్రద్ధ చూపెట్టకుండా మొత్తం స్టాఫ్ని టీచింగ్ అంటే CRT, PGCRT, నాన్ టీచింగ్ వర్కర్ల మధ్యలో గ్రూపులుగా విడదీసి ఒక్కొక్కరు తన్నుకునేలా ఇవాళ విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి ఈరోజు 2 నెలలు కూడా కావస్తలేదు ఆమె విధులు నిర్వహించబట్టి ఈ 2 నెలల కాలంలోనే మాక్లూర్ కేజీబీని మొత్తం కూడా గందరగోళపరిచింది। ఇవాళ స్కూల్లో ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందో అని చెప్పేసి ఇవాళ సిబ్బంది భయపడే పరిస్థితి ఉన్నది। జిల్లా విద్యాధికారి D1 సైతం విద్యార్థుల సమక్షంలో అసెంబ్లీ వేదికగా ఇవాళ ముసలోడు వాడు ఏం చేస్తాడని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నది। GCO మేడంని కూడా బూతులు తిడుతూ ఉన్నారు। అంటే ఇవి పదే పదే జరుగుతూ ఉన్నాయి। ముఖ్యంగా సిబ్బంది మీద అయితే విచ్చలవిడిగా ఇవాళ భౌతిక మానసిక హింస గురి చేస్తూ ఉన్నారు। అదేవిధంగా విద్యార్థులను आरमूर म्यूनिसिपल हुदूद के मुख्तलिफ वार्डों में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम का जीना दोभर हो चुका है। कई मर्तबा कुत्तों के हमलों में कमसीन बच्चे, ज़ईफ अशखास जख्मी हो चुके। इनको इलाज के लिए निजामाबाद और हैदराबाद का रुख करना पड़ा, जिससे अवाम में खौफ व डर। कई मर्तबा म्यूनिसिपल ऑफिस में दरख्वास्त दी गई, लेकिन कुत्तों को नहीं पकड़ा गया, जिस पर अवाम ने बरहमी का किया इजहार। आरमूर म्यूनिसिपल हुदूद के मुख्तलिफ वार्डों में आवारा कुत्तों से अवाम का जीना दोभर हो चुका है। म्यूनिसिपल आरमूर के मोहल्ले जाट, ज़िरात नगर, सईदाबाद, राजा रामनगर, शास्त्री नगर, मखदूम नगर, रामनगर, वीकली मार्केट, गोल बंगला, जर्नलिस्ट कॉलोनी, ओल्ड बस स्टैंड, पिरकिट और मामड़पल्ली के अलावा स्कूल के करीब आवारा कुत्तों की कसीर तादाद पाई जा रही। गुज़िश्ता में कई मरतबा कुत्तों के हमलों में कमसीन बच्चे, ज़ईफ अशखास ज़ख्मी हो चुके हैं। इनको इलाज के लिए निजामाबाद और हैदराबाद का रुख करना पड़ा। रात के औकात में कुत्ते एक टोली की शक्ल में 10 से 12 कुत्ते पाए जा रहे हैं। मोहल्ले के दवाखानों के करीब कुत्तों की कसरत से मरीजों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इससे अवाम में डर व खौफ पाया जा रहा है।
इसी तरह राहगीरों का कुत्तों की वजह से चलना मुश्किल हो चुका है। मुकामी अवाम ने म्यूनसिपल ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि म्यूनसिपल ऑफिस में कई मरतबा इसके खिलाफ दरख्वास्त दी गई, मगर आवारा कुत्तों को पकड़ा नहीं जा रहा। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरमूर में वालिदैन अपने बच्चों को घरों के बाहर भेजने से खौफ व डर महसूस कर रहे। आरमूर म्यूनसिपल हुदूद में आवारा कुत्तों की कसरत हद से ज़्यादा हो चुकी है। हर चौराहे पर कुत्तों की तादाद में इजाफे से मुसाफिरीन को काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। आरमूर की मुकामी अवाम ने ज़िला कलेक्टर और महकमा हैवानात से मुतालबा किया कि वो फौरी इस मसले पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए इसकी यकसुई करें ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। एमपीजे और इंदौर यूथ ने इंसानियत की मिसाल पेश की। एमपीजे और इंदौर यूथ की जानिब से लावारिस नाश की तदफीन अमल में लाएगी। निज़ामाबाद ज़िला के मरकज़ी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल करने वाले एक मुअम्मर लावारिस मुस्लिम शख्स की नाश को एमपीजे मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस और इंदौर यूथ के रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर इस्लामी तरीक़े के मुताबिक कफन व नमाज जनाजा के साथ सुपुर्द खाक कर दिया। ये बुजुर्ग शख्स जिनके कोई अहले खाना नहीं थे, उनके इंतकाल के बाद पुलिस की इत्तला पर एमपीजे और इंदौर यूथ के कारकुनान ने ये इंसानियत के जज्बे से भरपूर कदम उठाया। चारशंबे के रोज नए कब्रिस्तान में उनकी तदफीन का अमल मुकम्मल किया गया। इस मौके पर एमपीजे के रियासती कमेटी के रुकन शेख हुसैन ने कहा कि कब्रिस्तान कमेटी के ताउन से ये खिदमत कामयाबी से अंजाम पाई है। इंदौर यूथ के सदर बाबा साहब ने कहा कि मजहबी और जात पात से बालातर होकर अब तक 118 लावारिस नाशों की आखिरी रसूमात अंजाम दी जा चुकी हैं। इस मौके पर प्रवीण साइतेजा, गंगाधर, एमपीजे सदर जहीरुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी सज्जाद अली, नायब सदर रुपेश रेड्डी, अराकीन अनवर अली, रफीक, शेख गौस और दीगर अफराद मौजूद थे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ज़िंदगी की हर जानदार की हर चीज़ को एक दिन ख़त्म होना है, फ़ना होना है। इसी का नाम ज़िंदगी है। और आज मैं मोहम्मद सज्जाद अहमद, एमपीजे मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का जनरल सेक्रेटरी, हमारे साथ हमारे सदर जनाब मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब और जमात इस्लामी के दाई जनाब शेख हुसैन साहब, हमारे माविन जनाब अनवर अली साहब और सैयद रफ़ीक साहब और स्वच्छंद सेवा संस्था इंदौर जो है सेवा एक एनजीओ है। आज एक मुसलमान लावारिस नाश के ताल्लुक़ से हमें मालूम हुआ। इतला फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन से आई। जमात इस्लामी और एमपीजे मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की तरफ से ये कहा ये लावारिस नाश है और इसको मज़हब के रिवाज के तहत तजहीज़ और तदफीन का इंतज़ाम किया जाए। हमने उस हिदायत पर अमल करते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए। हमारी पूरी टीम के साथ हमारा पूरा वफद, एक हमारे गस्साल हैं मोहम्मद बशीर साहब, उनको लेकर जब हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचा तो नाश ये 5 दिन पहले इन साहब का इंतकाल हो गया था। ये नामालूम नाश थी और ताल्लुक़ मज़हब मुसलमान थे, लिहाजा हमने इनका तजहीज़ व तदफीन का इंतज़ाम बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गौसल दिया गया और कफनाने के बाद उन्हें यहाँ असद बाबा नगर नाम का एक कब्रिस्तान है निज़ामाबाद में, तो वहाँ ले जाकर उनकी मुस्लिम तहज़ीब के तहत, मुस्लिम रिवाज के तहत, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी रसूमात होते हैं उन रसूमात के तहत उनको उनकी तदफीन की गई और दुआएं ख़ास की गई। और इस दुआ में ये इंदौर युवता सेना नाम की जो तंजीम है उसके साथ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारा वफद
इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल और अच्छे इस्लामिक तरीक़े से अंजाम दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथी लावारिस नाश थी जिसको हमने इस्लामिक तरीक़े से उनकी तजहीज़ और तदफीन का इंतज़ाम किए और अल्लाह का एहसान रहा कि ये तमाम चीज़ें ये पुलिस स्टेशन से हमें ये हिदायत मिलने पर हम लोग फ़ौरी पहुंचते हैं और जो लावारिस नाशें हमें दस्तयाब होती हैं उन नाशों को हम इस्लामिक रीत और रिवाज तरीक़े से इस्लामी तरीक़े से उनकी तजहीज़ और तदफीन का इंतज़ाम करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत अता करे और हम सब को नमाज़ों की पाबंदी के साथ एक अल्लाह की इबादत, नमाज़ों की पाबंदी और सब के साथ हुकूक़ुल इबाद का तलक़ीन करें और ख़ुद भी हुकूक़ुल इबाद का पूरा ख्याल रखें। शिवाजी बीड़ी फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ बीड़ी मजदूरों ने एहतजाज किया और कहा कि वर्किंग डे उजरत स्लिप्स व दीगर मसाइल हल किए जाए। शिवाजी बीड़ी कंपनी के मजदूरों ने लेबर कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरना दिया और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को काम के दिनों उजरत की स्लिप व दीगर मसाइल के हल के लिए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। बाद में कारकुनों के साथ एक रैली निकाली गई और शिवाजी कंपनी के सामने धरना दिया गया। इस मौके पर यूनियन रियासती सदर वी कृष्णा ने कहा कि शिवाजी बीड़ी कंपनी की इंतजामिया गुज़िश्ता कुछ अरसे से बीड़ी कारकुनों को महीने में सिर्फ 8 से 12 काम के दिन दे रहे हैं, जिसकी वजह से मजदूरों को माली नुकसान पहुंचेगा और ख़ानदानों का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तौर पर काम जारी रखकर मजदूरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा। उन्होंने फौरी तौर पर 26 काम के दिन फ्राहम करने का मुतालबा किया। इसी तरह 1000 बीड़ियों के लिए दिए जाने वाले 600 ग्राम तोनिका में से सिर्फ 600 बीड़ियां बनाई जा रही और बाकी 400 बीड़ियों के लिए तोनिका बाहर के मजदूर तैयार कर रहे हैं। ये मुबैना तौर पर एक गैर कानूनी अमल है। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो मजदूरों को कपड़ा, तंबाकू और धागा जैसा खाम माल फ्राहम करें। इसी तरह वर्कर्स को सैलरी स्लिप्स नहीं दी जाती, इसलिए वो नहीं जानते कि उन्हें एक माह में कितनी तनख्वाह मिलती है। उन्होंने कहा कि बैंक में रकम मिलने के मामले में वो उलझ रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम मजदूरों को फिलफोर उजरत की स्लिप दी जाए। इस प्रोग्राम में मरकजी रियासती जनरल सेक्रेटरी एम नरेंद्र, जिला सदर सेक्रेटरीज डी राजेश्वर, IFTU जिला सदर सेक्रेटरीज एम सुधाकर दीगर भी मौजूद थे। కేవలం పని దినాలే కాకుండా ఉత్పత్తి సగం మాత్రమే రోజు ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి, అంతేకాకుండా నాసి రకమైనటువంటి తునకాకి ఇస్తున్నారు। ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం మాత్రమే ఈరోజు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చి అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ లేబర్కు మెమరాండం ఇచ్చి ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం యజమాన్యం పైన చర్య తీసుకోవాలని చెప్పి తెలంగాణ ప్రగతిశీల బీడీ వర్కర్స్ IFTUగా డిమాండ్ చేయడం జరిగింది। అంతేకాకుండా యజమాన్యంతో మాట్లాడితే మా మార్కెట్ లేదని చెప్పి అంటున్నారు। అసలు మార్కెటే కారణమా అని చెప్పి చూస్తే అలా కనిపించట్లేదు। ఆదిలాబాద్లో ఉండేటటువంటి రాజ్ కమల్ బీడీలో దాదాపు 18 రోజుల పని దినాలు ఇస్తున్నారు। అదేవిధంగా మోయిని బీడీ ఫ్యాక్టరీ సెంటర్లలో 12 రోజుల పని ఇస్తున్నారు। అంతేకాకుండా షోర్లాపూర్లో ఉండేటటువంటి ఇదే సాబ్లేవాగ్రే శివాజీ బీడీ ఫ్యాక్టరీ యజమాన్యం నెలకు 26 రోజుల పని దినాలు ఇస్తున్నటువంటి స్థితి ఉంది। వీటన్నిటిని కూడా సమన్వయం చేసి అందరికీ సమానంగా పని దినాలు ఇచ్చేటటువంటిది, ఉత్పత్తి కూడా సమానంగా ఇచ్చేటటువంటి బాధ్యత యజమాన్యానికి కనుక యజమాన్యం నిర్లక్ష్యం చేస్తూ కార్మికులకు అన్యాయం చేస్తుంది। 8 రోజుల పని రావడం వల్ల ఇవాళ పొట్ట గడవనటువంటి స్థితి బీడీ కార్మికులకు చేరుకుంది। ఇది చాలా అన్యాయమైనటువంటిది కనుకనే ఈ సమస్య మీద ఈ బీడీ ఫ్యాక్టరీ యజమాన్యం ముందు, లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ముందు कोडगीर मंडल से मादिगा बरादरी बड़ी तादाद में MRPS चलो निजामाबाद रियासती कॉन्फ्रेंस में शामिल। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो SC की दर्जेबंदी करें और पसमानदा मादिगाओं की हिमायत करें। MMRPS के बानी एम कृष्णा मादिगा की कॉल के मुताबिक मुश्तरिका कोडगीर मंडल के मादिगा भाइयों की एक बड़ी तादाद चलो निजामाबाद स्टेट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। सबसे पहले अम्बेडकर चौरास्ते पर एक ग्रुप बना और नारे लगाए। ये अफसोसनाक है कि SC की दर्जाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा। इस प्रोग्राम में MRPS मंडल सदर वीरैया, नायब सदर गणेश, चीफ सेक्रेटरी, పబ్లిసిటీ సెక్రటరీ శ్రీకాంత్ దిగర్ भी मौजूद थे। గారి పిలుపు మేరకు మరి రాష్ట్ర సదస్సు పెట్టడం జరిగింది। ఆ సదస్సును విజయవంతం చేయడానికి ఈరోజు మాదిగలందరూ ఉమ్మడిగా వెళ్ళి
ఆ సదస్సును విజయవంతం చేయాల్సిందిగా అందరూ ముందరసలో ఉండి పోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు మాదిగలకు తీవ్రంగా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది. ఏబిసిడి వర్గీకరణ చాలా అంటే చాలా మాకు నష్టం జరుగుతుంది. ఎస్సీల వర్గీకరణ జరిగితేనే మాదిగలకు న్యాయం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా మేము బలంగా నమ్ముకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఏబిసిడి వర్గీకరణ అనేది అందులో 59 కులాలు ఉన్నాయి. ఆ 59 కులాలకు అందరికీ సమన్యాయం జరగాలని చెప్పేసి మా మందకృష్ణ మాదిగారు పోరాటం చేస్తున్నారు. మరి ఈ పోరాటం గత 30 సంవత్సరాల నుండి నేటి నుంచి నాటి వరకు ఈ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా కొంతమంది మాల సోదరులు మొండిగా వ్యవహరించి సుప్రీంకోర్టు తీర్పును ఖండించినప్పటికీ కూడా మరి వారు इख्तिताम से पब्लिक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से फीस रियम्बर्समेंट की अदम इजराई, प्राइवेट डिग्री व पीजी कॉलेजेस का गैर मुय्यना मुद्दत बंद का ऐलान, तीसरे रोज भी बंद जारी, तलबा परेशान। भारतीय रानी कॉलोनी इनेदामी कार्रवाई के मुतासरीन गुज़िश्ता 2 माह से जिला इंतजामिया की इमदाद के मुंतजर, जल्द मकानात फराहम किए जाए, MIM का मुतालिबा, जिला कलेक्टर से मुलाकात, तहरीरी नुमाइंदगी की हवाले। जिला भर में आवारा कुत्तों की कसरत, इंसानी जानों को खतरा लाहक, अवाम का जीना दोभर। आरमूर में भी कुत्तों की कसरत, अवाम परेशान, इक़दामात की अशद जरूरत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।